Now we shall have our third session, the Hathras coverage, Darkness and Hope. Some incidents mark the power of media to bring to light injustice to fight against the mighty state. The media empowers the citizens when it speaks for them, like it did in the Hathras case. That's what we will talk about in our third session. The moderator of this session will be Miss Rohini Singh. She is a senior journalist who is working with The Wire and also an independent investigative journalist known for her hard hitting exposés of those in power centers. Her stories have revealed the inner workings of political parties and governments across India. As a consulting editor with The Wire, she has been at the forefront of investigative journalism in India. I now request Ms. Rohini Singh to begin the session by introducing the panelists. Thank you. Thanks so much, Sapsindhu. Our panelists really need no introduction. Brijesh Mishra, besides being a very close friend of mine, he is the editor-in-chief of Bharat Samachar, which is the foremost news channel based in Uttar Pradesh. And I think if somebody has covered the Hathras tragedy as closely and as minutely, it was him. And in fact, it was his channel that brought this entire, tragedy to the forefront, otherwise the government would have just swept it under the carpet. And before, forming Bharat Samachar and, becoming its editor-in-chief, Brijesh ji was also with the ETV of Uttar Pradesh. He was heading that. And it is said that if you need to understand, you have to go to Brijesh ji. Then, of course, there is Pragya Mishra. She's the other panelist. Pragya is a very, very strong voice. She's a woman journalist based out of UP. She covered the Hathras case very, very closely. In fact, she was there for many days, arguing with the government, with the police establishment. All the stories that Bharat Samachar did was largely all done by Pragya. And Pragya also does a very, very popular show. It's very widely watched called Cutting Chai. And in fact, it's something I think all of us should watch. It's interesting the way she confronts politicians, and exposes the hypocrisy as well as, tries to get them to comment on relevant issues. जो आजकल मीडिया नहीं करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो सी इन दिल्ली वो नहीं करती है, वो प्रज्ञा मिश्रा अब करती हैं, यूपी से करती हैं. Noida based channels nahi karte, but wo karti hai. Then, of course, our third panelist is a senior advocate with the Supreme Court, Mr. Sunil Fernandez. He served as the additional advocate general of the Madhya Pradesh High Court in the Supreme Court. He has also served as the counsel for the state of Jammu and Kashmir. He's also fought many, many prominent cases, such as the Sabrimala case, for instance, as well as striking down the validity of Section 377 of the Indian Penal Code. These are some of the feathers in his cap. So I welcome all the panelists to this very important discussion. I would like to basically say, the reason why we're having this discussion, and I think why the Hathras case has been chosen, is because while crimes against women happen, and they've happened in the past, and horrific crimes still keep happening. Recently, there was this horrible rape case in Badayu. There's something else that's been reported out of Jharkhand. There was a case in Madhya Pradesh. But why does the Hathras case stand out? I mean, people compared it to the Nirbhaya case. And while I don't know whether we can compare, two rapes, because each rape is horrific, I think why this case stood out and why it shocked the nation was how the government handled it. The government's handling of this case is something that evoked a lot of outrage, and that is why we're debating it today. The issue was never, of course, the issue of crime against women. That's something we can keep debating. But I think the issue really is on how every attempt was made to, basically protect the government's image. It was almost as if, the crime is not the problem, reporting of the crime, ये headline में कैसे आया, इस पे reporting क्यों हो रही है, इससे सरकार की बदनामी हो रही है. I think ये issue बन गया था, and I'm sure Brijesh ji will agree with me when I say that, कि the government was more focused on ensuring कि crime report नहीं हो, rather than tackling the crime. So I think I'd like to begin first by, asking Brijesh Mishra ji this question. आपने इतने, you've been reporting for so many years. You're such a senior journalist. आपको क्या लगा हाथरस केस में जो योगी सरकार की जो handling थी? Is this the first time you've seen a government, react like this? Because पहले भी उत्तर प्रदेश में सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में बहुत, horrific crimes हुए हैं.
अखिलेश यादव के टाइम पे हमने देखा था वो जो तो हाईवे का जो रेप केस हुआ था, जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया था। अगर मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती हूँ आपको रेप केसेस कंपेयर करना चाहिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट रिएक्शंस कंपेयर कर सकते हैं, एंड इफ यू कैन जस्ट टेल अस हाउ यू थॉट दिस वाज different from the way other crimes have been handled by different governments. If you could just tell us a little bit about that. ब्रजेश जी, आपका माइक आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। रोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए ये बड़ा गर्व का विषय है कि इस प्रतिष्ठित पैनल का मैं हिस्सा हूँ। और डॉक्टर कोटा नीलिमा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पैनल में मेरे साथ बाकी जो अतिथि हैं मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इस पैनल पे मुझे बोलने का आप सब लोगों ने अवसर दिया। मैं करीब 22 साल से उत्तर प्रदेश में जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट होने के ठीक फौरन बाद मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दी थी, तो करीब 22 साल हो गया मुझे यहाँ पे काम करते हुए। पर मुझे बहुत अफसोस और बड़ा दुख हो रहा है कि हाथरस की घटना में उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भूमिका थी, वो भूमिका कभी किसी जन कल्याणकारी सरकार की नहीं होती, ना ऐसी पुलिस की होती है। आप ये सोचिए कि घटना जिस दिन हुई उस दिन से लेकर और सीबीआई की चार्जशीट लगाए जाने तक जो कुछ भी उत्तर प्रदेश पुलिस का रोल था, वो बहुत स्तब्ध करने वाला था और बड़ा हैरान करने वाला था। कारण क्या था कि इसमें डे वन से, जिस दिन से घटना हुई और चार्जशीट लगाए जाने के दिन तक, आप हर मोड़ पर ये पाएंगी कि इसमें अभियुक्तों का साथ दिया गया, इसमें विक्टिम को दबाने की कोशिश हुई, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, एविडेंस को मिटाने की कोशिश हुई और इस घटना को बहुत डाउन प्ले करके खत्म करने की कोशिश हुई। और ऐसा पहली बार हुआ कि पूरी स्टेट मशीनरी लग गई, पूरी स्टेट की पुलिस लग गई कि कैसे इस घटना को दबा दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। और आप डे वन से देखना शुरू करें तो जब वो बच्ची थाने में जाती है और ये कहती है कि उसके साथ गलत काम हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय गलत काम? गांव में अगर आप जाएं, थोड़ा रूरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उन्हें पता है कि महिलाएं गलत काम जब बोलती हैं तो उनका क्या मतलब होता है। और पुलिस को भी ये बात पता है कि गलत काम का क्या मतलब होता है। पर आप देखिए कि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उसकी हालत बहुत खराब होती है। अलीगढ़ में एडमिट रखा, वहां से ठीक ट्रीटमेंट नहीं दिया। जो विरोधाभासी जितने भी इनके पास रिपोर्ट्स थी वो मंगाई गई ताकि हम ये प्रूव कर पाए, ये साबित कर पाए कि ये गैंग रेप एक्चुअली नहीं है। तो पूरी मशीनरी इस बात के लिए लगी थी कि हम ये कैसे साबित कर दें कि ये गैंग रेप नहीं है, ये बल्कि कुछ और है। ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने कल्याण सिंह की सरकार देखी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार देखी, अखिलेश जी की देखी, मायावती जी की देखी। घटनाएं होती थी, अपोजिशन को जाने से रोका जाता था, पर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी घटना को डिनायल मोड में रखा जाए और ये कहा जाए कि नहीं, अभियुक्त तो निर्दोष हैं, जिसके साथ घटना हुई है दरअसल वही दोषी है। विक्टिम शेम की जो कोशिश हुई और स्टेट मशीनरी का मिसयूज, स्पेशली वहां की पुलिस फोर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो इस्तेमाल करके आवाज को दबाने की कोशिश हुई, वो हैरान करने वाला। और वो ओपन कैमरे पर धमकी दे रहे। ऐसा आप शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार देखेंगे, मैं तो कहता हूं देश में पहली बार देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक आईएएस, डायरेक्ट बैच का आईएएस सीधे खुलेआम धमकी दे रहा है विक्टिम के फैमिली को। और मीडिया बजाय सच को रिपोर्ट करने के, जितने फैक्ट थे मीडिया ने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश की, मरोड़ने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि दरअसल ये एक अफेयर था और अफेयर की वजह से ऐसी घटनाएं हो गई और परिवार रंजिशन ऐसी घटना कर रहा है, जो कि गलत था। और अंत में वही बात साबित हुई। मैं आपको दिन बता सकता हूँ, 14 तारीख की ये घटना है और हम लोग डेली मॉर्निंग एडिटोरियल मीटिंग करते हैं। 15 को हमारे एडिटोरियल मीट में ये बात सामने आई कि हाथरस में इस तरह की एक घटना हुई है। तो वो एक सामान्य खबर की तरह चली, क्योंकि तब तक वो रेप इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ था, ना पुलिस में हुआ था, ना हमारे रिपोर्टर्स को पता चला था। ये घटना हमको भी 3 दिन बाद पता चल पाई, वो भी तब जब ये लोकल मीडिया में चर्चा में आई और हमारे रिपोर्टर ने अलीगढ़ में किसी तरह उनकी फैमिली को संपर्क किया, तब जाकर ये पता चला। फिर हम लोगों ने खबरें चलाना शुरू किया, तो उसके भी 3 दिन बाद पुलिस हॉस्पिटल जाकर बयान दर्ज करती है। तो आप ये सोचे कि 7 दिनों तक ना तो कोई स्टेटमेंट लिया गया था कि रेप हुआ है, ना उसका कोई मेडिकल कराया गया था। तो जब आप मेडिकल ही नहीं कराएंगे और बयान ही नहीं लेंगे तो इसमें रेप केस या गैंग रेप केस बनेगा कैसे? तो वहीं से इन्होंने फैक्ट को खत्म करना शुरू किया और घटना को दबाने की कोशिश की।
जब भी किसी महिला के साथ इस तरह का हीनियस क्राइम होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सर्कुलर है कि वहां पर राजपत्रित अधिकारी जाएगा, गजेटेड ऑफिसर जाएगा। वो डिप्टी एसपी भी हो सकता है, वो एडिशनल एसपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है। सामान्य तौर पर एसपी को जाना चाहिए, पर घटना का विवेचक ही वहां 48 घंटे बाद पहुंचा और 7 दिनों तक तो कोई डिप्टी एसपी का राजपत्रित अधिकारी वहां पहुंचा ही नहीं। ये बताता है कि दरअसल अभियुक्तों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरा जोर लगाया था। और मैं नहीं मानता कि पुलिस ये खुद कर रही होगी। निश्चित तौर पर पुलिस को कहीं से संरक्षण हासिल था, पुलिस को ये कहीं से इशारा था कि इस घटना को हमें किस दृष्टिकोण में इंटरनेशनल, नेशनल या रीजनल मीडिया के समक्ष रखना है। शायद यही कारण है कि आपको याद हो तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसमें कहा था कि ये रेप केस नहीं है और जो रेप केस चलाएंगे हम उनके खिलाफ केस करेंगे। उसमें आपको के खिलाफ भी ट्वीट किया गया था रोहिणी जी, जिसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ने आपको थ्रेट दी थी कि ये फेक ट्वीट आपने किया है और आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। तो आप समझें कि पत्रकारों को डराया गया, विक्टिम्स को डराया गया, विक्टिम के फैमिली को डराया गया, उनके बयान बदले गए, सबूत मिटाए गए, गवाहों को धमकाया गया। ऑन कैमरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धमकाता है। आप जो कुछ फिल्मों में कल्पना कर सकते हैं सुनील जी, वो आप उत्तर प्रदेश में हाथरस की इस केस में कर सकते हैं और ये हॉरिबल केस है। मैं तो सुनवाई का पार्ट भी था, 1-2 बार मैं गया भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप जज साहबों के बयान के ऑब्जर्वेशन सुन लेते तो आप खुद हैरान रह जाते, जो कुछ भी उन्होंने कमेंट्स किए हैं ये पूरी व्यवस्था पर चोट करने वाला है। और ये उत्तर प्रदेश में न्यू नॉर्मल हो गया है कि कोई बड़ी घटना हो जाए तो पुलिस पहले डिनायल मोड में आती है कि नहीं ऐसा तो हुआ नहीं। आपको कैसे पता कि नहीं हुआ? मेरा बेसिक क्वेश्चन यही था, चाहे वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रहे हों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहे हों या डिपार्टमेंटल लोग रहे हों, तो मैं उनसे यही पूछता था कि जब तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं लिया है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो तुम्हें कैसे पता कि रेप नहीं हुआ? इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाया और अंत तक अपने पसंदीदा मीडिया के थ्रू ये कोशिश, नैरेटिव चेंज करने की कोशिश हुई कि दरअसल ये रेप नहीं है, ये 2 कम्युनिटी के बीच का झगड़ा है। और हमारे चैनलों ने उनका साथ भी दिया और विक्टिम शेम की कोशिश भी हुई, उनके परिवार को डराया गया। उनके परिवार की हालत अभी प्रज्ञा बताएंगी, प्रज्ञा तो उनके फैमिली के साथ 4 दिनों तक थी। आपको जानकर हैरानी होगी रोहिणी जी कि उनकी फैमिली में स्थिति ये थी कि उनके पास 2 टाइम के खाने का बंदोबस्त नहीं था और उनके ऊपर इल्जाम ये लग रहे थे कि इनको पीएफआई से फंडिंग हुई है, इनको करोड़ों रुपए आए हैं। उनके पास एक अदद ठीक से बैंक अकाउंट नहीं था, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे तब उनका गुजारा चलता था। और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए या उनको करोड़ों रुपए मिले हैं। वो बहुत खुददार परिवार है और मैं उस परिवार का बड़ा सम्मान इसलिए करता हूं कि उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बातों पे, सरकारों के लालच पे परिवार बिक जाते हैं। ब्लड मनी चलती है यहाँ पे कि आपके घर पे किसी की मौत हो गई, इतना मुआवजा ले लीजिए, घर बैठ जाइए। पर इतना गरीब परिवार, लेकिन वो खुददार लोग थे, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने सरकार से 1 रुपया नहीं लिया, कोई मुआवजा नहीं लिया, कोई व्यवस्था नहीं ली। वो सिर्फ एक मांग करते रहे कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के बदले उनको क्या मिला? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने परिवार, जहां पूरी गवर्नमेंट, देश की सबसे पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट लगी हो, किसकी हिम्मत है कि वो सरकार के खिलाफ जाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ सकता है? नहीं लड़ सकते। आप देखिए बदायूं में नहीं लड़ पाए, बड़े बड़े लोग नहीं लड़ पाते, सरेंडर कर जाते हैं। पर उस परिवार की खुददारी थी कि वो लड़े रहे, डटे रहे और खड़े रहे साथ में। मीडिया को थ्रेट किया गया, वहां पे डराया और धमकाया गया, 4-4 दिन मीडिया को एंट्री नहीं दी गई, वहां उन लोगों से मिलने नहीं दिया गया। ये कोई मामूली बात है? ये कोई छोटी बात है? इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में न्यू नॉर्मल हो गई। न्यू नॉर्मल इसलिए हो गई क्योंकि अब हमने बर्दाश्त करना सीख लिया है। मैं इसलिए रिएक्ट करता हूं क्योंकि मैंने चीजों को देखा है 20-22 सालों में। और अब आप उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना देख ले, पहले तो ये बताया जाता है कि ऐसा है ही नहीं। आप बहुत दबाव डालेंगे तो पार्शियली वो एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिनायल मोड जो शुरू हुआ है, इट्स ए न्यू नॉर्मल एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ये समाज के प्रति भी गलत है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है और मीडिया के लिए भी गलत है। इसमें एविडेंस मिटाए गए, स्टेट स्पॉन्सर्ड था सब कुछ और सीबीआई ने भी पूरी अभी जांच नहीं की है। सीबीआई ने तो अभी सिर्फ सिंपल ये बता दिया कि ये 4 अभियुक्त हैं। सीबीआई ने ये क्यों नहीं बताया कि एविडेंस किसने मिटाया? सीबीआई ये बताया कि लाश किसने जलवाई? सीबीआई ये बताया कि एडीजीपी का क्या रोल था? सीबीआई ये बताया कि लेट नाइट किसने कॉल किया था लखनऊ से कि डेड बॉडी को जला दिया जाए? ये किसके ऑब्जर्वेशंस थे? क्या सीबीआई को इस पे जांच नहीं करनी चाहिए थी?
पर सीबीआई ने केवल उन 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जो इस घटना में सम्मिलित थे और एविडेंस के साथ किया है, फोरेंसिक एविडेंस के साथ किया है। आप बताइए, ये क्या छोटी बात है सुनील जी कि जेल के भीतर से 4 बलात्कारी एक चिट्ठी लिखते हैं एसपी को कि साहब हम लोग तो निर्दोष हैं और हमारी तो कोई गलती नहीं है। वो चिट्ठी एसपी के पास पहुंचने से पहले लखनऊ में मीडिया में फैल जाती है। तो मैं क्यों ना मानूं कि स्टेट इसमें शामिल है? पर्याप्त कारण है कि स्टेट इसमें शामिल है। डे 1 से स्टेट इसमें शामिल था और हर क्षण ये रोकने की कोशिश हुई कि हम इसमें कैसे ये साबित करें कि ये गैंगरेप नहीं है, यह कम्युनिटी विशेष के लड़के हैं, उनकी गलती नहीं है, ये बताने की कोशिश हुई। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि रात में 2:30 बजे किसी की लाश जला दी जाए। इसको आप कम्युनिटी एंगल से भी देखें। वो शेड्यूल्ड कास्ट थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। क्या किसी अपर कास्ट के साथ ऐसी घटना होती तो क्या सरकार या पुलिस की हिम्मत पड़ती कि वो रात में 2 बजे डेड बॉडी बर्न कर देते? नहीं पड़ती। ये आपकी सोसाइटी का सच है और इस सच को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपकी सोसाइटी जहां आज भी आप दलित को पूरी तरह से सिटीजन का दर्जा नहीं देते, आपकी हीन भावना के शिकार हैं और सरकारें भी उन्हें न्याय नहीं देती हैं। ये घटना उसका भी उदाहरण है। आज भी उस परिवार के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। क्या कोई बोल रहा है? क्या कोई पूछने गया उनकी फैमिली में, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि अब तुम्हारा क्या हाल है, अब तुमको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब गांव में तुम्हें जो थ्रेट है। आप सोचिए कि एक शेड्यूल्ड कास्ट परिवार 2 फैमिली रहती हैं और पूरा गांव ठाकुरों का है। आप फिल्मों में 80 के दशक की जो सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा भयावह हालात होते हैं गाँव में। लाठी लेके लोग घूम रहे होते हैं ठाकुर। एंड रोनी जी प्लीज डोंट माइंड। तो स्थितियां, हालात दूसरी हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी स्वीकारिए कि उनको किस लेवल पे जाकर टार्चर किया गया, हैरेसमेंट किया गया, इंसाफ की आवाज दबाई गई, पर वो परिवार खुददार है। उस परिवार ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, इंसाफ की लड़ाई लड़ी, इसलिए हमने उनका साथ दिया। हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना काम ईमानदारी से किया। हमने किया, हमारे रिपोर्टर प्रज्ञा ने किया, हमारे पूरे स्टाफ ने किया और हमने सच का साथ दिया। हम डे 1 से जो लाइन पकड़े थे, सीबीआई की चार्जशीट में हमारी ही लाइन प्रूव हुई और हमें इस बात का फक्र है कि हमने मेहनत की और इंसाफ की मुहिम का हिस्सा है और मैं अपनी टीम पर बड़ा इस बारे में प्राउड फील करता हूँ। यस रोहिणी जी जी। प्रज्ञा, आई वांट टू आस्क यू, आप वहां थी, यू कवर्ड इट, आप फैमिली के साथ आप 4 दिन थी, आपको पुलिस वहां गांव में जाने नहीं दे रही थी। यूपी में हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों को लेके सच दिखाने के लिए मीडिया के अगेंस्ट एफआईआर होते हैं। ये भी एक नया नॉर्मल हो गया है। आपने सच क्यों दिखाया? आपने सच दिखा के गवर्नमेंट की बदनामी करी है। गवर्नमेंट की बदनामी गवर्नमेंट को लगता है, योगी गवर्नमेंट को लगता है कि इस बात को लेके होती है कि उनके बारे में सच दिखाया जा रहा है। आपको किसी प्रकार का थ्रेट मिला आपके अगेंस्ट? यू नो, you're a woman, or it is also harder for women as a woman journalist. I know that it's also harder for women to cover a lot of things. लेकिन आप वहां थी और मैंने ये भी देखा था कि दिल्ली से कुछ एंकर्स आई थी, women एंकर्स, जो गवर्नमेंट का जो नरेटिव था कि ये एक कास्ट इशू है और इनको फंसाया जा रहा है, और एक जो स्लैंडर कैंपेन शुरू हुआ था अगेंस्ट द विक्टिम इन अ फैमिली, वो भी कुछ वुमेन एंकर्स ने करा था जो दिल्ली से आई थी। लेकिन आप वहां थी, आप यूपी में रहती हैं। इट इज वेरी इजी फॉर मी सिटिंग इन दिल्ली टू टॉक अबाउट द योगी गवर्नमेंट, लेकिन आप यूपी में रहती हैं, आपका काम यूपी में है। आपको किसी प्रकार का थ्रेट, एनी हैरेसमेंट, कैन यू शेयर दैट विद अस? सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका दिया। रोनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर कि मैं विजय सर के साथ, आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो हाथरस में, हाँ, जो भी था सब सामने था। मैंने लाइव दिखाया भी था कि किस तरह से पुलिस बल प्रयोग कर रही है। मैं धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि हम किसी भी तरीके से अंदर ना जा पाए, पीड़ित परिवार से ना मिल पाए। तो हाथरस में 2 घटनाएं थी। एक थी दलित बिटिया के साथ गैंगरेप और दूसरा था कि ठाकुरों की इज्जत को सामाजिक गैंगरेप से बचाना। हाथरस की घटना से पहले किसी ने ये सुना भी नहीं होगा कि पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया हो। हाथरस घटना से पहले किसी ने सुना भी नहीं था कि परिवार से पूछे बिना लाश जला दी गई हो। मीडिया को रेप कवर करने से रोका जा रहा हो, ऐसा कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ। और जो आरोपी पक्ष थे, जो रेप के
आरोपी थे उनके पक्ष में लोग वहां पर अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे थे और वो मीडिया को टॉर्चर करने की, डराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मैंने अपने कई बार मैंने लाइव किए थे और मैंने ऑन कैमरा अपने टेलीविजन चैनल पर भारत समाचार पर लगातार लोगों को दिखाया था कि किस तरह से वहां पर थ्रेट किया जा रहा है पत्रकारों के खिलाफ। कॉल डिटेल सार्वजनिक करी गई थी, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिख करके उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि एक विशेष जाति के बारे में जो हम शुरू से सुनते पढ़ते चले आए हैं कि जिन वर्ण व्यवस्था में जिस जाति को पूरे समाज की रक्षा का दायित्व, उत्तरदायित्व दिया गया है, जिस जाति के बारे में हम सुनते हैं कि वो सबसे ऊपर है, उस जाति को, उस जाति के लोगों को उसी जाति की सरकार में कैसे दाग लगने दिया जाए। सिर्फ ये कारण था कि उस वक्त पर दूसरी जाति के लोगों को, मैं ये टर्म बार बार रोनी जी इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हाथरस में ये था, ये बिल्कुल सच्चाई थी। वहां पर ऐसा था, वो दलित बिटिया थी, इसीलिए उसको न्याय नहीं देने की हर कोशिश की जा रही थी कि उसको न्याय ना मिल पाए। वो दलित बिटिया थी, इसीलिए उसकी आवाज दबाई जा रही थी। और यकीन मानिए कि अगर भारत समाचार ना होता, अगर हमारे भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रिजेश मिश्रा जी नहीं होते, तो उस बिटिया को न्याय कभी नहीं मिल पाता, कभी नहीं मिल पाता। मुझे अदम गोंडवी जी की दो पंक्तियां इस वक्त पर याद आ रही हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। पूरी कविता एक है चमार की गली तक, मैं आपको उसकी दो पंक्तियां सुनाती हूँ। वो पूरी इस हाथरस की पूरी घटना से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजियों का ठिकाना घर नहीं जेल है। चमारों को डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। तो ये था हाथरस में। अलग अलग जगह पर रेप के आरोपियों के लिए महासभाएं की जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि उस जाति की इज्जत, उस दलित बेटी की इज्जत और जान से बड़ी थी। मैं वहां पर लगातार कवर कर रही थी और मैं आपको बता दूं कि वहां पर पुलिस के सामने मैं धरना दे रही थी कि किसी तरह से लोग मुझे अंदर जाने दें। अलग अलग रास्तों से मैंने जाने की कोशिश करी कि किसी तरह से परिवार से मिल पाऊं, लेकिन कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। अगर पुलिस, एसडीएम साहब वहां पे हाथरस में, प्रेम प्रकाश मीणा जी, जिनका नाम मैंने लगातार अपने रिपोर्ट्स में दिया है, वो हाथ में डंडा लेकर घूमते थे, हाथ में डंडा लेकर दूर खड़े होकर मुस्कुराते थे और उनको लगता था कि मीडिया उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उनको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था। तो इस तरह से हम भी अड़ गए थे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि सेशन का नाम है डार्कनेस एंड होप, तो भारत समाचार उस परिवार के लिए, उस गुड़िया के परिवार वालों के लिए अंधेरों में एक होप, एक आशा की किरण बन करके उभरा था। यही कारण था कि उसका छोटा भाई न जाने कैसे बचते बचाते, पूरे परिवार को जब नजरबंद कर लिया गया था, तब वो बच्चा बचते बचाते, पुलिस से बचते हुए मेरे पास आया था और मैंने ही एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया था कि किस तरह से उस परिवार को नजरबंद रखा जा रहा है। फोन तक उनसे छीन लिए गए थे रोहिणी जी। उनको अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था क्योंकि जिन पत्रकारों के पास उनके नंबर थे वो उनसे पूछ सकते थे कि आप लोग ठीक हैं कि नहीं। पिताजी की हालत बहुत खराब थी, वो इतना बीमार थे कि उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा रहा था जस्ट बिकॉज कि वो पीड़ित परिवार थे और ऐसा दिख रहा था कि शायद वो दलित है, इस वजह से ही ऐसा किया जा रहा है उनके साथ, उस परिवार के साथ। तो ये सब जो भी हो रहा था वो सब कुछ बिल्कुल साफ था, इसमें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं थी। सच को छुपाने के लिए लेयर्स के ऊपर लेयर्स रखी जा रही थी। लेकिन हमारे एडिटर इन चीफ ब्रिजेश मिश्रा लगातार बोल रहे थे कि सच चाहे जितना छुपाने की कोशिश कर लीजिए, सच जमीन फाड़कर सामने आ जाएगा, और सच सामने आया। भारत समाचार पहले दिन से कह रहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब ब्रिजेश सर ने देख लिया कि शासन का ऐसा रवैया है कि वो कुछ किसी भी हद तक मतलब जाएंगे लेकिन सच सामने नहीं आने देंगे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच में ही साफ हो जाएगा कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए वैसा ही हुआ। जिन लोगों को निर्दोष बताया जा रहा था, जिन आरोपियों को, जिन रेपिस्ट को निर्दोष बताया जा रहा था, उन लोगों को दोषी साबित किया गया। सीबीआई की जांच में साफ हो गया कि उसने रेप किया था। और अगर भारत समाचार नहीं होता तो बिटिया को न्याय कभी नहीं मिल पाता। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ।
कितने एंगल थे। देखिए, बिटिया को न्याय न दिलाने के बजाय कितने एंगल लाए गए। नक्सली भाभी का एंगल लाया गया, इंटरनेशनल प्लॉट, जी फंडिंग की बात कही गई, और वो दलित है इस बात का फायदा उठा रहे हैं ये कहा गया, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन न्याय दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आया। जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज करे प्रज्ञा, एंड आई वांट टू जस्ट आस्क सुनील, so the whole attitude of the government, Sunil, in terms of like family ko band karna, not allowing them to speak to the media, the fact that the media was not given access to the to the village to cover an event, the fact that we had ADG Law and Order jinhone press conference kara saying that there was no rape, which basically goes against, even when an investigation was happening, and on the basis of which he said that there was no rape, actually goes against the the new rape laws that were formed. The attitude of the administration, the local administration, the DM who was seen on camera, threatening the family. We still have a journalist from Kerala who's in jail accused of having all kinds of links with PFI and part of some international funding. All that, that is that even legal? And are there any legal, can governments be held accountable? Can officials be held accountable legally? Can courts, step in and ensure that there is accountability for governments behaving this way? I want to get your views on that as a lawyer. What do you think? Rohini, something that you said at the start of this debate when you introduced everybody, you said that there have been heinous instances of rapes in the country. Most recently, we had Nirbhaya in 2012 December. But what is different about this is the government's handling. I think you've hit the nail on the head. And I have immense respect for Brajesh ji and for Pragya ji for the yeoman's work that they have done to expose this and to have credible media totally uninfluenced by the government's intimidation is a rarity in this country. So I totally agree with whatever Brajesh ji just said, about the entire episode. But that is what I would say the micro issue. What is the macro issue? And in that answer to the micro issue lies the answer to what you have just posed me. The NDA government at the center and the NDA government or the BJP government at the state, this is a government which is extremely conscious about its image. This is a government which is totally dedicated towards its brand building, towards creating a narrative. And they believe that the narrative or the style or the image is more important than the substance itself. So as long as their narrative or their image is not dented, they don't get concerned. And any event which has a potential of denting or damaging their event, or any person who has the potential of denting or damaging their image, they would open what is known as ad hominem attacks, the whataboutery. So if at all there is some example, just look at the farmers' agitation currently. Now, rather than addressing the issues, and the government may be right, let's be very, let's give the benefit of the doubt to the government. Maybe they're absolutely right in the statement and objects or the reasons of coming up with the farm laws. But how is it that they've interacted with people who are opposing it? Have they engaged in a dialogue, or have they engaged in an ad hominem attack, calling them Khalistanis? Or have they engaged in whataboutery, that whosoever asks the question, you first, unleash a volley of abuses, like what Brajesh ji said. Firstly, deny, nothing happened, and then you unleash a volley of abuses, insinuations, innuendos, try and destroy the credibility of the person or the persons asking it, like call them Khalistanis, call them Pakistanis, so on and so forth. So what happens is that you ensure that the narrative gets displaced from answering as to what you have done to answering to the person asking the question, justifying about his own self. So I just want to quickly interrupt you, ask you one thing. In the case of, let's say, if we talk specifically about the Hathras case, right? You had ADG Law and Order who did a press conference saying there was no rape. And many people pointed it out, saying that, the basis on which he's saying is flawed. It goes against the new rape laws that came in after Nirbhaya, right? We've seen the district magistrate on camera threatening the family. The family was locked up, not allowed to meet politicians, not allowed to meet media, not allowed to speak out. I mean, the fact that the younger brother had to escape and run, I mean, they were treated like prisoners. The fact that, the victim's body was cremated in the dead of night without the family's permission, and they were all locked up again.
how is any of that legal? I mean, surely there are repercussions to this. And can can the courts hold the government and officials involved in this accountable? Because I read somewhere, and there was an article that had come out, that the fact that her body was cremated in the dead of night actually is a crime under the SCST Act, because you're inflicting great misery on the group of of people belonging to the scheduled caste. How do you see that as a lawyer? The answer to that is, and this is just, I just gave the background as to what the government is currently doing. Now, if you just come to the courts, now the having described as to what is the government's strategy. Now, when you come to the courts, what happens is, now whatever has transpired in Hathras, it's all the events there at a very nascent stage. So now there are two ways in which courts can get involved. You will have the criminal court, which will have jurisdiction over the criminal trial. And that is a very limited jurisdiction, which is pertaining only to that offense. Whether was there a rape and murder or no, if yes, who committed it, trial, conviction, acquittal, so on and so forth. Now, that court has very limited jurisdiction, because it would be a local criminal court in Hathras, and they would not strictly have jurisdiction to decide as to whether what the ADGP law did, so making that statement, or whether what the DM did, at 2 a.m. whether all those things are legal or not legal, because they strictly don't come under within the confines or the contours of the criminal case that is pending now before the Hathras court. The issues that you have raised goes beyond this criminal case. And these are the issues which are essentially in the nature of what one would call it as public interest litigation. So it has to be, the jurisdiction for this would lie only either with the Supreme Court or with the Allahabad High Court. No other court in the country can have it. Sure. So all these issues, whether was the DM justified in doing what he did at 2 a.m., did the senior officials mislead the media, was there intimidation, was there an effort to browbeat officials, and so on and so forth. These are the aspects that are not strictly within the confines of the criminal case that will be going on in Hathras. But the fact that, let's say, we had the identity of the victim revealed by the BJP IT cell chief Amit Malviya, and he tweeted this whole video, which basically saying that there was no rape, although she says very clearly in the video that was recorded with Mere Saath Zabardasti Hui, which, as Brajesh ji says, in rural India, Zabardasti is a euphemism for rape. There are legal repercussions to that, aren't there? Because the laws are very strict about the fact that you cannot reveal the identity of the victim. Like they are, but what I'm just trying to the point that I'm trying to make or inform our viewers is the legal repercussions are distinct from the criminal case that is going on. The criminal case that will go on will be on a very limited aspect, whether did the offense take place, number one. Number two, if the offense has taken place, who has committed that crime. And number three, if a crime has been committed, then those accused persons, whether should they be punished or no, depending upon the evidence that comes on record. So that criminal court has a very narrow jurisdiction. It cannot venture into the very valid issues that you have raised. Those issues that you have raised right now, like for example, even Amit Malviya disclosing the identity of the victim, which is a clear offense under Indian Penal Code 228A. So you can't disclose the identity, etc. All those things will have to be handled in a separate proceedings. They can't be handled in the immediate criminal proceedings that are happening. And many a times, this is the reason, because probably the viewers at large may not be aware of this. They may have this overbearing sense of frustration as to why is the criminal court not acting. Now, the criminal court in Hathras is not acting because it can't act. It does not have the jurisdiction or the power to venture into all those arenas. It has a power only to look into that limited aspect of a criminal trial. Now, all these issues, the nature in which the state has handled or rather mishandled it, all these issues should be a subject matter of a separate petition, a separate public interest litigation. And attempts were made. Attempts were made in the Allahabad High Court, attempts were made in the Supreme Court, but unfortunately nothing came out of it, because the government came with a robust defense, and the government played the national security card, saying that these, just as I said, in every issue, be it PAA, NRC, farmers agitation, any issue which goes to the superior courts, that is the high courts or to the Supreme Court in a public interest litigation or in their own manner. Like for example, today, the very latest news is that in the morning, Supreme Court has stayed the farm laws, but the government resisted its best, saying that Khalistanis have infiltrated this thing, and they said that they'll file an affidavit of the Intelligence Bureau. Now, you must look at the judges also. Now, when they're placed with such information, no matter how well-meaning a judge is, he would pause. No, because you have the government of the day making this statement. It's not just a flippant comment made by somebody on WhatsApp.
True. I agree with you, which I want to quickly come back to you, Brijesh ji. Sunil has made a very important point. जब सरकार कुछ बोलती है कि ये रेप नहीं था, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं रेप नहीं था, और बोलते हैं कि हम मीडिया के अगेंस्ट केसेस करेंगे अगर वो ऐसे रिपोर्ट करेंगे. आप मुझे ये बताइए कि इस माहौल में भारत समाचार और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जितने भी हैं, और also related to some of the mainstream news channels, तनुश्री पांडे जी थी, उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग करी थी. How do journalists work in UP? Because UP में जो almost एक दहशत का एटमॉस्फेयर है जर्नलिस्ट्स के लिए, वहाँ जर्नलिस्ट होना सबसे बड़ा क्राइम है besides being a Muslim. मुसलमान होना या जर्नलिस्ट होना बहुत बड़ा क्राइम हो गया है यूपी में. तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे काम करते हैं, और जर्नलिस्ट कैसे काम कर सकते हैं यूपी में जब ये एटमॉस्फेयर है. इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अभी उसके बाद जो आपने देखा, वो जो डीएम हाथरस जिनको निकाला जाना चाहिए था, जिसके अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी काफी नेगेटिव टिप्पणी करी थी, उनको आप मिर्जापुर का डीएम बना दिया गया है. तो वो एक तरह से प्रमोशन ही हुआ ना. मुझे देख के क्या आपको लग रहा है कि क्या मैं डरा हुआ हूँ या मुझे डर लग रहा है? मेरे ख्याल से नहीं लग रहा होगा. देखिए, जब आप एथिक्स का पालन करते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं, सच के साथ रहते हैं, आपका कोई बैगेज नहीं होता है, आपका कोई पास्ट नहीं है, और आपने कोई गलत काम नहीं किए हैं, और आप पर कोई कारपोरेट का दबाव नहीं है, और आप किसी पार्टी या दल की विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और आपको अपनी बात कहने की दृढ़ता है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं. और मैं और हमारी टीम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमें न तो कोई दबा सकता है, न हमें कोई झुका सकता है. हम लोग सच के साथ रहे हैं, सच के साथ रहेंगे. हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ठीक बात है. थ्रेट भी बहुत ज्यादा होते हैं हमारे रिपोर्टर्स को, और मिलती भी रहती है, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना हमें आता है, और शायद यही कारण है कि हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं. हाँ, दूसरे पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि मेरी जानकारी में पिछले 4 सालों में 67 से ज्यादा पत्रकार या तो जेल जा चुके हैं, या उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, और हफ्ते में एक आध बार तो खबर आई जाती है किसी न किसी जर्नलिस्ट पर एक्शन हुआ. बट मैं ये मानता हूं कि दिल्ली का मीडिया हो, या लुटियंस मीडिया हो, या नेशनल मीडिया हो, सबके अपनी दायरे और भूमिकाएं हैं काम करने की. पर मैं मानता हूं कि रीजनल मीडिया देश के मीडिया के मुकाबले बहुत बेहतर है, अच्छा काम कर रही है, सच को निकाल के लाती है, बिना डरे निकाल के लाती है. और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए लागू नहीं होती. आप देश के किसी भी कोने में देखें, कोई भी बड़ी खबर ब्रेक हुई है तो नेशनल मीडिया ने नहीं की है. नेशनल मीडिया ने तो सिर्फ उसको कलर दिया, एजेंडा दिया. खबर निकाल के लाने का काम और सच का साथ रीजनल मीडिया ही देते हैं. हम लोग भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जहां तक कर पाएंगे बेहतर करेंगे, और जब भी लगेगा आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ और काम करेंगे. अच्छा, now I think we'll go to the question answer session. ब्रजेश जी, एक सवाल आपके लिए है. Is the weaker section always at the receiving ends of crime? Will the questions of society ever get answered? देखिए, समाज को तो इस बारे में जागना होगा और बात करनी होगी, क्योंकि हाथरस की घटना के बाद मैंने एक डिवाइड देखा है उत्तर प्रदेश में. बहुत लंबे समय से ऐसा डिवाइड खत्म हो गया था. स्पेशली आप देखें तो 90s और पोस्ट राम मंदिर के बाद का जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत बदला हुआ था. लेकिन इस बीच इधर 4-5 सालों में मैं वो डिवाइड फिर फील कर रहा हूँ, जहाँ पर किसी को न्याय पाने के लिए उसकी जाति बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. तो और पुलिस का भी जो बिहेवियर है वो भी बदला हुआ है, और उनके लिए तमाम चीजें न्यू नॉर्मल है. आप बदायूं की घटना देख लें. हम लोग आज हाथरस पे बात जरूर कर रहे हैं, पर बदायूं उससे भी ज्यादा ब्रूटल है, उससे भी ज्यादा खूंखार है, उससे भी ज्यादा दहशतनाक है, उससे भी ज्यादा भयावह है, कि जहां पर एफआईआर ही नहीं लिखेगी, 44 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका. और किस तरह से उसको पुलिस ने हैंडल किया. पत्रकारों को धमकाया गया, फैमिली को धमकाया गया कि तुम एफआईआर करो ही मत. और एक जांच तो हो रही है. आपने खुद ट्वीट किया था कि इस बात की जांच हो रही है सुनील जी कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को कैसे लीक होगी. जो आप इमेज बिल्डिंग की बात कर रहे थे, एवरीथिंग बेस्ड ऑन दैट ओनली, कि कोई घटना हो गई तो साहब पता मत चलने दो. अगर पता चला तो फिर मीडिया में बदनामी होगी, और अगर मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी तो हम एफआईआर करेंगे, कार्रवाई करेंगे. तो ये एक प्रॉब्लम है. हाँ, ये बात आपकी सही कि यूपी में पत्रकार डरे हुए हैं, लेकिन सब नहीं डरे हुए हैं, और उम्मीद है कि मुझे देख के आपको ऐसा महसूस हो रहा है. जी नहीं, वो आपको तो देख के ऑब्वियसली हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है. ब्रजेश जी, मेरे लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग रेप, सीइंग द असॉल्ट्स एंड रिपोर्टिंग द रियलिटी ऑफ क्राइम? The challenges of reporting, whether it's rape, whether it's a corruption scandal, whether it is
something else, is the same under the present regime. I have been a journalist for several years now. यूपीए के टाइम पे भी मैंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करी थी, अभी भी मैं कर रही हूँ. लेकिन यूपीए के टाइम पे जब मैं सरकार से सवाल पूछती थी, मुझे एंटी नेशनल नहीं बोला जाता था, मेरे अगेंस्ट स्लैंडर कैंपेन नहीं होता था. मिनिस्टर्स कोट्स देते थे. और एंड ऑफ कोर्स इट्स रियली अप टू पीपल, उनका फंडामेंटल राइट है वो बात करे या नहीं करे. लेकिन इतना प्रेशर नहीं होता था. तो आज मैं बोलूंगी, चाहे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो, चाहे रेप हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर हम ऑब्जेक्टिवली स्क्रूटनाइज करें जैसे फार्म लॉज, उसमें इतनी गाली नहीं पड़ती थी. और इस समय गाली सिर्फ ट्रोल्स नहीं देते हैं, एनोनिमस ट्रोल्स नहीं देते हैं, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं गाली देने के लिए. सरकार भी कैंपेन चलाती है, एडिटर से बात करेगी कि इनको नौकरी से हटाओ, इनकी बीट चेंज कराओ. ये सब बहुत हो रहा है क्योंकि जैसे सुनील ऑल्सो मेंशन्ड, I think this government is more concerned कि उनकी image कैसे हो. It's a lot into image building, narrative building. Narrative इनके control में होना चाहिए, image हमेशा इनके control में होनी चाहिए. And I think that is challenging not just for me. I'm an investigative journalist. In fact, मैं तो ये भी बोलूँगी आज कि कभी-कभी मुझे लगता है कि अंबानी वरानी पे भी जो मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, क्या is that also देशद्रोह? क्योंकि हर चीज अब एंटी नेशनल होता जा रहा है, सवाल पूछना एंटी नेशनल होता जा रहा है. So I think that is, that's a challenge. Pragya, I want to come to you. There's a question for you. Does the media support the embedded caste fear when they report central violence? I mean, is caste a factor? और क्या हमारी मीडिया जो ज्यादातर, ये हमने पहले भी डिस्कस करा कि अपर कास्ट है, does caste play a factor? And do we end up, because ultimately journalists are also from society, जो हमारे biases हैं, क्या do we give in to our biases when we are reporting on certain crimes? बिल्कुल रोहित, बहुत बड़ा फैक्टर है. मैं आपको बता दूं, अभी विकास दुबे का केस आपको याद आया होगा. उस जगह पे कई न्यूज चैनल से बड़े ही टशन के साथ विकास यादव चलाया था. तो जो आपने बोला कि मीडिया भी बायस हो गई है, तो उनकी ऐसी सोच है कि अगर इस कास्ट से व्यक्ति आता है तो वो गुंडा मवाली क्रिमिनल ही होगा, तो जो ऊपर है वही नीचे है. सत्ता में भी यही है. जैसे अभी मैंने आपकी बात सुनी, सुनील जी ने भी बात बोली कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा असर पड़ता है कि उनकी इमेज कैसी है, उनकी इमेज हमेशा अच्छी बनी रहे. तो इस बात का ध्यान रखते हैं कुछ मीडिया चैनल्स भी, क्योंकि आजकल की पत्रकारिता भी बहुत बदल गई है. अगर आप सत्ता के की तारीफ करते रहेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा आप सत्ता के फेवरेट में गिने जाएंगे. और अगर जरा भी आपने एक बार भी कान खिंचाई कर दी, अगर आपने एक बार भी उनकी गलती बता दी, तो या तो फिर आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, या तो फिर आप विपक्षी पार्टी के पत्रकार हो जाएंगे. पत्तलकार एक शब्द आजकल पत्रकारों को कहा जाता है, पत्तलकार या चाटुकार. तो ये आजकल ये हो गया है. तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है. जो ऊपर है, जो सोच है वो ऊपर से ही डेवलप हुई है, वही जमीन पर नजर आता है. Okay, so now there's a question for you. Does the nature of this case handling does it also impact how a judiciary is perceived and by the public? I'm sorry, Rohini, I just lost your question. Could you just repeat it again? Yeah, so does the nature of the state mishandling a situation, let's say like the Hathras case, does it also have an impact on the image of our judiciary and and how judges are perceived now by the public? You see, as I said, the problem, it cannot be, they can't be a very straight black and white, or they can't be a very short answer to this. Because you see, the judiciary also functions within its own limitations. Many a times, I think the people of this country sometimes have unrealistic expectations with the judiciary. You understand the judiciary has a lot of powers, but it also comes with a lot of self-imposed restrictions also. So unless and until there is something which is there before the court based on hard evidences and hard facts, the judiciary may not be in a position to act. And at times, like I said, when the public interest litigations took place in Allahabad and in Delhi, the government came up with certain, played the national security card. It came up with certain evidences or certain allegations that did not, that made the courts sit back and take a back seat and allowed the investigative process to continue. Because the way the legal system in our country is that till the investigation is not concluded, the courts maintain a hands-off approach. It's only when the investigation concludes that the courts actually step in. And this is the, you can say, the advantage that the state government is taking.
Because at the end of the day, all these things are interlinked. What Brajesh ji has said, what Pragya ji has said, what I am saying. See, first and foremost, it's the image, the narrative. Anything against that, will be met with great deal of whataboutery, great deal of personal allegations. So apart, it's not that UP wasn't casteist society before the present government came there. It was, and it wasn't that such heinous crimes hadn't taken place. But the difference, as coming back to the original question that you asked, the difference is this: we have a government which is extremely intolerant to any form of dissent or any form of narrative, because this is a government which came into power after UPA 2's public image was desecrated. True. So then there's another question for you, and it ties up with essentially what you've just said. How is this government different from the previous regimes? Because for every government, image matters, right? It mattered even for the UPA, although they didn't do a great job of managing it. So how is this government different from previous regimes? See, because you must understand, this government is a microcosm or embodiment of their leaders. The central government is nothing but an extension of Mr. Modi's personality. The present UP government is an extension of Mr. or Yogi Adityanath's personality. So if they will not have, if supposing there is an event of like this, the government would not have the humility to accept that yes, an unfortunate event has happened, a criminal action has happened, and we are there to admit, own up responsibility, and we will do our best to punish the accused. This is the basic expectation a citizen should have from a welfare state. But on the contrary, if they were to do it, then the public image of the muscular, Hindutvavadi image that they have so created, that will go for a toss. So therefore, this is, so as you said, every government did care about the image, but the degree to which it would go to protect this image and castigate the ones raising the question. So it's a question of degrees. This is unprecedented, because since independence till now, we have not come across a government which can go to such extreme lengths to protect its image, to protect the narrative, because if the image is secure, so the votes are secure. And so the government is secure, you see. So it's a thread, once you pick it out, the entire thing unravels. So this is how UPA 2 unraveled. So therefore, and it's been a trend that you must observe that since 2002, since Mr. Modi has been the chief minister in Gujarat, you must understand that this has been a consistent trend. This is not something that we came to know overnight. It happened in the state of Gujarat also. Journalists, the ones who were there from the civil society, the opposition, they all were targeted. Targeted to a far extreme extent to which the earlier governments would have. As you rightly said, even in UPA 2, you would have run so many stories. The Supreme Court passed so many judgments against UPA 2. You don't see that sort of an activism now. You see? So, if today's staying off the farm laws was you can say, the exception to the norm. The Supreme Court, the higher constitutional courts are deferring to the government in the sense they are giving a far greater leeway to the government than what it did in UPA 2. You see, you had 2G scam, 3G scam, coal scam, so many judgments that the Supreme Court passed, which were directly hitting at what the central government acted, but not now. You have CAA, NRC, 370, farmers' protests, so and so forth, electoral bonds. There are a host of issues which the court has given a great deal of rope to the government. So you see, and they're doing it because, as I said, it's not easy for the courts also to go beyond a certain limit. They have their own self-imposed restrictions. This battle against the government cannot be fought in the courts. Let's be very clear. So the people of the country must understand that the politicians, the battle against the politicians or the current political class will not be fought by the judges. They are not here to fight our political battles. This battle will have to be fought by the people when they realize that they've been taken for a ride. Unless and until the people don't get out of, stop being seduced by this muscular and by this, this extremely broad chested image that the government is portraying, unless and until the people don't come out of that trap, nothing's going to help. So we can, have this debate, and we can, as concerned, conscientious citizens, as constitutionalists, be affected by it. But the larger narrative, there have been so many people who would lap up what the senior IAS and IPS officers have said. If you take a straw poll, more people would believe that the girl is characterless than compared to her where the law is that is irrespective whatever character is, you can't put a clear finger on a body. Absolutely. Brajesh ji, aapse ek sawal hai. What do you think will be the ideal reform in the media? One ideal reform. मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडियल रिफॉर्म तब होगा मीडिया में जब आप इसको कारपोरेट से मुक्त करेंगे। मैं नहीं मानता कि कोई मीडिया किसी पार्टी की विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। यही जो चैनल है जो इस वक्त आपको लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, यही चैनल पहले बहुत अच्छा कर रहे थे।
अगर आपको याद हो तो यूपीए के टाइम इन्हीं चैनलों ने देश में क्रांति की थी। मीडिया ने करप्शन केसेस को बहुत अच्छे से उठाया था, पूरे देश भर में क्रांति हुई थी और उसके कारण यूपीए 2 की सरकार भी गई थी। तो ये वही मीडिया है। लेकिन इस मीडिया में बड़ा हिस्सा कारपोरेट का आ जाने की वजह से कारपोरेट का दबाव है मीडिया पे। कारपोरेट का दबाव रेवेन्यू की वजह से है, कारपोरेट का दबाव पैसे की वजह से है और इसी कारण वो आपको मीडिया में वो चीजें दिखेंगी नहीं। अब आप मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो 1-2 चैनल्स को अगर वहां आप छोड़ दें तो वहां का मीडिया सरकार से सवाल करता है, सरकार से सवाल खड़े करता है। इतना ताकतवर प्रेसिडेंट जो इस पूरी पृथ्वी का सबसे ताकतवर आदमी है उससे सवाल पूछता है। वो इसलिए पूछ पाता है क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से आ रहे रेवेन्यू की चिंता सीएनएन को नहीं है, फॉक्स को हो सकती है पर बाकियों को नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अपना रेवेन्यू मॉडल है। जिस दिन इंडियन मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, विदाउट कारपोरेट इन्फ्लुएंस के हो जाएगा, विदाउट कारपोरेट इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा, विदाउट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हो जाएगा, उस दिन यही मीडिया आपको बेहतर करके दिखाएगा। पत्रकार वही हैं, विचार नहीं बदले उनके, लेकिन उनके पीछे का जो दबाव है वो बदला है। और आप कोई भी मीडिया हाउसेज उठा के देख लीजिए और उनके स्टेक चेक कर लीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लीजिए, आपको सच सामने आ जाएगा कि आपके पास सच्चाई क्यों नहीं आ रही है। हम इसलिए बेहतर कर पा रहे हैं क्योंकि हम पत्रकारों का चैनल है, हमारे पास किसी कारपोरेट का इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर हमारे पास होता तो शायद मैं आपसे इस तरह बोल्डली बात नहीं कर पाता। तो कारण ये कि जब तक आप कारपोरेट को मीडिया से अलग नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंट मीडिया की बात भूल जाइए इस देश में। Vijay ji, Rohini, if I may have permission to speak something to you. Vijay ji, आपने दुरुस्त बोला, I agree with you. कॉर्पोरेट को और मीडिया को अलग करने से भी उससे ज्यादा जरूरी है मीडिया को सरकार से अलग करना। सबसे मेन दिक्कत हमें आ रही है कि प्रॉब्लम वही है जब मीडिया आप सरकार का माउथपीस बन चुकी है। मीडिया को प्रॉफिट एंड लॉस से दूर करिए। मीडिया कोई भी प्रॉफिट लॉस का बिजनेस नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए जिस दिन आप ये करने में कामयाब हो गए उस दिन आप देखिएगा कि आप ये पाओगे कि ये मीडिया बेहतर काम करेगी। मुझे अपने स्टाफ की सैलरी बांटनी है तो मैं पैसे कहां से इकट्ठे करके दूंगा? जाहिर सी बात है कि मेरे ऊपर बाजार का दबाव होगा और बाजार में रेवेन्यू है नहीं तो अगला रेवेन्यू किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो बट नेचुरल है कि मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। तो आप मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था दीजिए कि मैं अपना चैनल इंडिपेंडेंटली चला पाऊं, जहां पर बाजार का या सरकार का मेरे ऊपर दबाव ना हो। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ और बेहतर पत्रकारिता करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको भी कह रहा हूँ, ये मैं बाकी मीडिया के लिए भी कह रहा हूँ। Corporate influence, the other thing is you can try to separate it from the government, but governments also have a lot of influence on corporate India, and I know that through experience. Which minister called up which corporate house, says isko inke newspaper ko advertisement nahi do, because there were certain stories that went. So those things happen, and in India I think corporates also need to be freed of the government, if you know what I mean. Our institutions have to be that strong that a report that comes on a news channel that's owned by some corporate house, there won't be repercussions for that corporate house and their other businesses, right? Wherever there is this government, wherever there is this interface with the government, right? Obviously the government will have far more influence, and I think that is what we're seeing in India. It brings us back to the people of India. Now see, if I were a viewer, if a discerning viewer, I would be extremely suspicious of a news channel which is parroting the government narrative, which is thumping its chest in support of the government and doing its best to run down the opposition. Now, if I were a viewer, an informed viewer, I would be very suspicious of this print or electronic media, because the media by its very nature, the judiciary, media, election commission, all these are institutions created to act as a check and balance on the government. And if they start parroting the government's narrative, then you should surely smell a rat. So it all boils down to the people of this country. The battle has to be fought with the minds of the people of the country. They have to be told that Brajeshji's news venture, if it is taking an anti-government stand, it is actually taking it at a great risk. It is trying to bring the truth to the people at large. But news channels or web portals or newspapers which are parroting the government narrative, so the people have to be in the West, for example, there are very successful business ventures who are extremely independent, be it New York Times or Washington Post. They don't operate on any government dole. They are not socialists or communist oriented. They are free market capitalist enterprises, but their readerships are very, very clear that we don't have to parrot the government line, and the readers encourage that. They would patronize such publications. But here in India, we see a very unfortunate trend,
where the media, where the people at large seems to be brainwashed. A television channel which keeps tom-tomming, imagine whatever Doordarshan used to do in a very subtle manner, we have a dozen odd channels doing it in the most brazen fashion. And the people of this country are not able to realize that. So it's a sorry reflection on us before we, point fingers at the government. True, and you have no, absolutely. You've got independent, digital platforms, and I always believe that if you want news, freedom of press is not just my freedom to write. I can tweet, I can write a blog. It is also your right to know as a citizen. You really should know what your government's doing, and then you make a decision. Maybe you're fine with what your government is doing. Maybe you're fine with the Love Jihad, laws, but you have a right to know. You should know where, which direction that's taking the country, and then you make your informed choices based on, the set of facts that you have. I completely agree with you. Brijesh, I want to come back to you. One, last question, which is that do you think UP is too big a state to manage, or kabhi hum caste or ke issues se kabhi hum bahar aa payenge? Will UP ever be able to vote on real issues like employment or peace or communal harmony? Do you think they'd ever be able to vote on, let's say, the issue of employment and not caste or religion? देखिए, यूपी के पास कई बार रोनी जी ऐसे मौके आए जहां यूपी इन सब चीजों से निकल सकता था, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाते हैं, आप चुनाव हार जाएंगे। आप मेट्रो बनवाते हैं, आप चुनाव हार जाएंगे। आप अच्छे स्टेडियम बनाते हैं, आप चुनाव हार जाएंगे। आप 4 लेन एक हाईवेज बना के डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं हेडक्वार्टर्स को, आप चुनाव हार जाएंगे। मायावती ने हजरतगंज, लखनऊ में है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह, आप तो लखनऊ से बिलोंग करती हैं। मायावती ने हजरतगंज को, पुराना हजरतगंज बनाने के बारे में सोचा जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक्चुअल था, और सुनील जी 400 करोड़ का उन्होंने मेगा प्लान हजरतगंज के रिनोवेशन के लिए मायावती ने कराया, और पूरा हजरतगंज उन्होंने बदल डाला, एकदम ब्रिटिश एरा टाइप का बना दिया। 400 करोड़। आपको पता है कि मायावती हजरतगंज वार्ड से उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि आपको उन चीजों से निकलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्राइम, कास्ट, करप्शन, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे बहुत बड़े हैं। हम उस उत्तर प्रदेश को जानते हैं, बहुत से लोग जो हाईवेज के किनारे बसे हुए गांव या शहर हैं। आप ओरिजिनल उत्तर प्रदेश में अगर गांव में चलेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा उनकी स्थितियों को देखकर। उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो बीमार होने का भी उन्हें हक नहीं है। अगर वो बीमार हो जाए, घर बिक जाते हैं, उनकी महिलाओं के घरों के जेवर बिक जाते हैं, उनके खेत बिक जाते हैं, उनके घर बिक जाते हैं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, 24 आवर्स लाइट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वो एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन हमने वो नैरेटिव लोगों तक पहुंचने नहीं दिया ना। हम किस पर बात करना चाहते हैं? लव जिहाद पे बात करना चाहते हैं। हम किस पर बात करना चाहते हैं? हिंदू और मुसलमान पे कर रहे हैं। हम किस पर बात करना चाहते हैं? मंदिर और मस्जिद पे बात करना चाहते हैं। हम इस पे बात करना चाहते हैं कि हमने किसका घर गिरवा दिया। तो जिस दिन जनता को उसकी अपनी प्रायोरिटीज पता चल जाएंगी कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवकों की संख्या है जिनको जॉब्स नहीं मिल रही है। ये बड़ा इशू होना चाहिए ना। तो नैरेटिव ये फिक्स होना चाहिए, और ये कौन करेगा? हम और आप नहीं कर पाएंगे। ये काम जनता को ही करना पड़ेगा कि आपको काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको तय करना पड़ेगा कि कौन नेता या कौन पॉलिटिकल पार्टी दरअसल आपके बारे में आपका बेहतर चाहती है। खैर, उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं क्या कहूं, आप अमेरिका में देख लीजिए कि वहां का राष्ट्रपति झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हुए उसने अमेरिका में तख्ता पलट तक करने की कोशिश कर दी, जो सर्वाधिक ताकतवर पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है। अगर वो अपने वहां 47% लोग ट्रंप को सिर्फ इसलिए वोट देता है क्योंकि वो रेसिज्म करता है, तो आप उत्तर प्रदेश को कहीं इल्जाम नहीं दे सकते। ये तो बेचारे बड़े गरीब और बड़े छोटे लोग हैं, इनके साथ तो मतलब सिंपैथी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। Anyway, thank you so much, everyone. It was a really great discussion, and hopefully we should. I don't know who will listen to us, but I think it's very important in a democracy for us to keep generating views and opinions, and hope that someone sitting in the government does listen to different points of view. That the citizens also get more aware. And thank you, Nilima, for organizing this. And it's a great initiative that you've taken. Read the Debate is a fabulous initiative that seeks to hold the media accountable, which is really ironic because the media is the institution that should have held everybody accountable. But we now live in times when
our media and our TV channels need to be held accountable. Thank you very much. और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको नहीं डरा सकते। आपको बिल्कुल नहीं। थैंक यू। एक मैं कहना चाहूंगी कि धन्यवाद। fabulous session, बहुत बहुत महत्वपूर्ण discussion था। I totally agree with Brajesh ji. I also agree with Sunil ji that we have to keep media away from both businesses and government. And I also agree with you, Rohini, that it's not an easy job to be a journalist anywhere in the country, and especially, of course, in UP. I am in awe of Pragya and the amount of work she has done, the kind of passion she has done. Thank you so much. I just wanted to say that one of the attempts of... Thank you, रोहिणी जी। इन्होंने हाथरस केस में जो किया है वो दिल्ली में बैठ के कर पाना बहुत कठिन था, और मैं इनकी समस्या समझ सकता हूँ, बट शी डिड इट। जी जी जी, ये बहुत बधाई की पात्र है। एंड वेरी ब्रेव। और इसकी बहादुरी के किस्से तो आप लखनऊ में किसी से भी सुन सकते हैं, इस तौर पर ब्यूरोक्रेट से। बिल्कुल। नो, मैं कह रही थी वो जो जागरूकता के बारे में बात हो रही थी कि जनता में ऐसी जागरूकता आनी चाहिए, वो ही हमारा अटेम्प्ट है रेट द डिबेट के थ्रू, कि हम अपनी मेथोडोलॉजी के थ्रू कंटेंट को ऐसा रेट करें कि लोगों को पता चले झूठ क्या है, सही क्या है, कास्ट क्या है, डेवलपमेंट क्या है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने समय दिया हमें।